Good morning each and everyone. Most welcome to my study Pathshala. Today we will study about chapter 6 anatomy of flowering plants. Okay, so let's start the topic. इसमें हम पढ़ेंगे the tissue system के बारे में, anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plants के बारे में. So let's start the topic. As you all see, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे. This chapter introduces us to the internal structure and functional organization of the higher plants. ये जो चैप्टर है हमें इंट्रोड्यूस कराएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी, हायर प्लांट्स की. एंड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. जो क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी. So first we have the tissue system. Firstly we will study about the tissue system. So what is the tissue system? On the basis of structure and location. Structure और location के base पे there are three types of tissue system. तीन type के tissue system होते हैं. Epidermal tissue, the ground और fundamental tissue system and the vascular और conducting tissue system. ठीक है, तो इनके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे. इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन would also be dependent on the location. Location पे depend करता है. So one by one we will study about its systems. Firstly we have the epidermal tissue system. As you see in the picture, क्या होता है इसमें, the epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body. जो epidermal tissue system होता है वो क्या फॉर्म करता है, outermost covering किसकी, whole plant body. ये जो पूरी प्लांट बॉडी है, ये मान लीजिए आप इसको एक प्लांट बॉडी मान लीजिए, ये प्लांट का पार्ट है. इसका क्या करता है, ये एक टिश्यू सिस्टम, ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक होल प्लांट बॉडी की. ओके, एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस. क्या फॉर्म करता है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस को ये फॉर्म करता है. आगे मैं आपको पिक्चराइज करके बताऊंगी कि किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है. The trichomes and hairs. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. जो epidermis होता है वो क्या होता है, outermost covering होती है. ये देख सकते हैं आप, जो ये वाला portion है this is called as epidermis. और ये क्या है, outermost layer होती है primary plant body की. After that we will study about its characteristics. Okay. So first we have epidermis is usually single layered. कैसे होते हैं, ये single layered होते हैं. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm, lining cell wall and a large vacuole. ठीक है, कैसे होते हैं epidermal cells, parenchymatous होते हैं, small amount of cytoplasm होता है इनमें, lining cells wall and large vacuoles होते हैं इसमें present. After that we have the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle. क्या होता है, आउटसाइड में इनके एपिडर्मिस होता है जो किससे कवर्ड होता है, एक वैक्सी थिक लेयर से, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं. मैं आपको पिक्चराइज करके बताऊंगी यहाँ पे. एज यू सी इन द पिक्चर, ये देखिए जो ये एपिडर्मिस पार्ट है, यहाँ पे जो ये बाहर वाला पार्ट है ये एक वैक्सी लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्यूटिकल बोलते हैं. ओके, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स. रूट्स में जो है क्यूटिकल एब्सेंट होता है. क्यूटिकल सबसे ज़्यादा आपने ये याद रखना है, ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को. ओके, इसमें ये हेल्प करता है. So fifth we have the stomata are structures present in the epidermis of the leaves. Stomata कैसा structure होता है, present होता है epidermis of the leaves में. After that मेरे पास एक note है, stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. क्या करता है stomata, regulate करता है transpiration को, process को and gaseous exchange को. Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as God cells which enclose stomatal pore. ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, स्टोमेटा जो है कंपोज्ड होता है टू बीन शेप्ड सेल से, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, गॉड सेल्स बोलते हैं, विच एनक्लोजेस स्टोमेटल पोर. ठीक है, क्या एनक्लोज करते हैं, स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करते हैं. The sixth characteristic we have in grasses, the god cells are dump bell shaped. grasses में क्या होता है, god cells कैसे होते हैं, dump bell shaped के होते हैं. Okay. The outer wall of the god cells away from the stomata pore are thin and the inner wall toward the stomatal pore are highly thickened. ये मैं आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करके बताती हूँ यहाँ पे किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है.
जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो ये बाहर वाला पोर्शन है गॉड सेल्स का, ये वाला पोर्शन जो बाहर वाला लेयर है, ये कैसी होती है, ये थिन वॉल्ड होती है, और जो अंदर वाली वॉल है गॉड सेल्स की, दिस इज द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गॉड सेल्स। द गॉड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को पोजेस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट बीन का एक एग्जांपल है, एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और क्या करते हैं ये, क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं, इस प्रोसेस में जो है हेल्पफुल रहते हैं। Okay, so this is all about. Next we have the cells of epidermis bear a number of hairs. जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो नंबर ऑफ हेयर्स को जो है बियर करते हैं काफ़ी सारे। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेटेड होते हैं एपिडर्मल सेल्स, और हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, किसकी, वाटर की एब्जॉर्प्शन में एंड मिनरल की फ्रॉम द सॉइल। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। जो ट्राइकोम्स होते हैं शूट सिस्टम में वो कैसे होते हैं, यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू, ये देखिए, ये है सारा हमारा टिश्यू सिस्टम के बारे में, epidermal tissue and ground. Next we have the ground tissue. All tissues except the epidermis and the vascular bundle constitute the ground tissue. जितने भी जो टिश्यू होते हैं except epidermis और vascular bundle वो constitute करते हैं ground tissue को, ठीक है, and it consists of a simple tissue such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, इनको ये जो है फॉर्म करते हैं। Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays. जो parenchymatous cells होते हैं वो usually किस में present होते हैं, cortex में, pericycle में, pith में और medullary rays में, in the primary stems and roots. Okay. In the leaves, the ground tissue consists of a thin-walled chloroplast containing cell and is called as mesophyll. क्या होता है, लीव्स में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट होता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट से, जो कंटेन करते हैं सेल्स को, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, मेसोफिल सेल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड टिश्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आफ्टर दैट द थर्ड लास्ट वी हैव द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें जो है फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे वाले टॉपिक्स में करेंगे। और इसका क्या होता है, दे बोथ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। और क्या करते हैं, ये दोनों टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल को। ये देखिए यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, और ये किसका पार्ट है, वेस्कुलर टिश्यू का, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ग्राउंड टिश्यू। और जो ये बाहर वाले पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये है डर्मल टिश्यू कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वॉल। इसमें भी जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाइकोटाइलेडनस स्टेम और मोनोकोटाइलेडन्स के। फर्स्टली वी हैव द डाइकोटाइलेडन्स। इसमें क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन डाइकोटाइलेडनस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करके बताती हूँ कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट है, और बीच में क्या है प्रेजेंट, कैम्बियम। ओके, बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम देयर इज प्रेजेंट कैम्बियम। थोड़ा जूम करके देखिए। सो ये क्या करता है, सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ये ऐसे वेस्कुलर बंडल हैं जो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस करते हैं एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, क्या पोजेस करते हैं, एबिलिटी किसकी, टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, हेंस आर कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ओपन वेस्कुलर बंडल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, पोजेस करते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की एबिलिटी, इसलिए उनको सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। सेकेंड वी हैव द मोनोकोटाइलेडन्स। इसमें क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए उनको क्लोज सिस्टम बोला जाता है, क्लोज वेस्कुलर बंडल। ओके, कोई भी सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर टिश्यू। ओके, या क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल।
Third, the last we have when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner. जब xylem और phloem within a vascular bundle arrange होते हैं एक alternate manner में along with the different radii, the arrangement is called as the radial as in roots. ठीक है, इनकी जो है radial symmetry होती है as you see in the picture. ठीक है, इस टाइप का जो है इनका स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है xylem और phloem within a vascular bundle arrange होते हैं एक alternate manner में. ओके, लास्ट वी हैव द नोट. इसमें क्या है, इन conjoined type of vascular bundles the xylem and phloem are jointly situated along the सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल. जो conjoined टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं इनमें xylem and phloem jointly situated होते हैं. कहाँ पे? along the same radius of the vascular bundle के. ओके, such vascular bundles are common in stems and leaves. ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं stems and leaves में. ओके, so the conjoined vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. तो जो conjoined vascular bundles होते हैं उनमें usually phloem होते हैं located किसमें? outer side of the xylem में. ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक द टिश्यू के बारे में. टिश्यू में भी हमारे जो है तीन तरह के टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड द वेस्कुलर टिश्यू. आज हमने पढ़ा इन सभी के बारे में. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स और इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे. रेस्ट विल स्टडी टुमारो. और तब तक के लिए आप जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना. और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माय स्टडी पाठशाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें. थैंक यू.